invite Mr. Ismail Gore Khan for presenting about scholarship for minority students. Mr. Ismail Gore Khan, over to you. Okay. So I will not take you more time. I just want to ask you how many of you know that there are scholarships for minorities? Please raise your hand. Okay. There are scholarships for open category students also. How many of you know? See, this is it. So I will just tell you what you have to do and when you can apply. Okay. Okay. This is the National Scholarship Portal where you can see fresh applications. So before that, a small information. Those who are applying for the master's category, there is this thing: pre-matric, post-matric, merit cum means, and Begum Hazrat Merit. So Begum Hazrat Merit is not relevant to you. Merit cum means is only for the technical courses. So we don't fall under the technical courses. There is post-matric and pre-matric. Pre-matric for those who are below 10. Okay. So once we apply for post-matric, there are certain guidelines. So those children who have family income is less than 2.5 lakh can apply for this scholarship belonging from any minority class in the country. Okay. There is this selection criteria. Eligibility is that you should have 50% marks in an examination and annual income should not exceed than 2.5 lakh. 2 lakhs sorry. Earlier it was 4 lakh. Now they reduced the thing. This is the first. You can apply for the minority scholarship, and there is another one which is the state level. So you have two options. If you are applying for the state level or national level, if you want to apply for the national level, go to NSP, and you apply for the state level, go to the state department. There is one thing that if you are applying for the state level scholarship, you cannot apply for the national scholarship. And you are applying for the national scholarship, you can't apply for the state level. This is for the minority students. Those income is less than 2 lakhs per annum. You can issue certificate from the local authority and then you can apply directly. Your funds, your all documentation will be installed on this software only and your funds will be distributed accordingly. This is for the minority scholarship. The second thing is that those students who are in open category, it's for the Maharashtra only, okay? Those who are having the Maharashtra domicile, and those children who are from the open category, they can apply for the scholarship. The scholarship name is that Rajashri Shahu Chhatrapati Rajashri Shahu Shaikshanik Shishruti. Okay? So in that, those who are pursuing higher education under this tab, you can apply for this. The limit of income for applying this scholarship is that first, your annual income should be lesser than 8 lakh per annum, and second, those who are getting benefit should not have 2 children. अगर आपने benefit लिया है तो आपका भाई या बहन ले सकती है, third children आज का benefit नहीं ले सकता. This is for the open category. Okay? Any person who is in the open category can apply for this scholarship. Annual family income should not up to 8 lakh. Okay? And candidates who will take admission under general category are eligible. And they should not have gap of 2 years. इसके लिए जो आपका ट्यूशन फीस है, एग्जामिनेशन फी है, वो कवर हो जाएगा. और एनएसपी के जैसे बताया मैंने आपको, इट कवर्स क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, पारसीज, बुद्धिस्ट, ऑल 5 कैटेगरी और 6 कैटेगरीज ऑफ माइनॉरिटीज अंडर एनएसपी. तो एनएसपी में आप अगर लॉगिन करते हो तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ा प्रोसेस जल्दी होता है कंपेयर टू स्टेट लेवल का. इसकी डेटा रहती है, कीप चेकिंग द वेबसाइट. ओके, अभी ये तो क्लोज हो चुका है दिस ईयर के वास्ते. That's it, I think. There are special sales for each of the department. यहाँ पे जब आप जाओगे महा-डीबीटी आपकी सरकार में, तो फर्स्ट है ट्राइबल डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन. So you can do it in a social work practice also.
अगर आप फील्ड वर्क पे जा रहे हो, those children who are coming from this lower category, income category, and they are coming from the upper category, so you have available scholarship also. I am not saying you are not economically sound or economically well, but apply to these scholarship. Can you have the record? कि आपके पास रिकॉर्ड है कि आपने अप्लाई किया है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बन जाता है। भले ही स्कॉलरशिप की अमाउंट कम आती है या फिर उतनी कंसल्टेंट में ज़्यादा नहीं आती है, ट्यूशन फीस भी आपकी कवर के हो पाती है, बट यू शुड अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप, ताकि आपके पास रिकॉर्ड बन जाता है गवर्नमेंट के डेटाबेस में कि यू आर वन ऑफ दोज बेनिफिशरीज। ओके, अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो हर साल में गवर्नमेंट इसके बजट में कटौती करते चला जाता है। तो यू शुड अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपका SC/ST में नहीं जा रहा है, ओपन माइनॉरिटीज कैटेगरी में नहीं जा रहा है, तो आप ओपन में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपकी इनकम लेवल 8 लाख तक दिखाई जा सकती है। ओके, दैट्स इट। Thank you, Ismail, for giving detailed information of scholarship for minority students. Over to Tejasvi. Good afternoon to everyone. My name is Tejasvi Gambre from DS1, Equal Opportunity Cell of the College of Social Work, Nirmala Niketan, organized the Vocal Conference 2023. On this conference day, I welcome to our Vajanta ma'am and all faculty members, today's chairperson and panelists, and all my dear friends book coaches one's imagination to think big. A constant fuel is required by our mind to develop knowledge and enrich our perspective. Here the importance of reading comes into play. The idea of conference came from the student after long time discussion on the how to inculcate the reading habit among students, improve their improve their presentation skill and reduce stage fear. Even reading important because it makes a person more knowledgeable and stimulates imagination. It sharpens the mind and providing opportunity to meet legendary people. So let us mark this conference as a symbol of our newfound adventures and experience with reading and knowledge. Now before reading towards the presentation, I would like to invite our dearest Vajanta ma'am to address the student. Thank you, Tejasvi. Thank you. It's very nice. I really congratulate all the committee members and Samir sir for organizing this. I was looking forward to this conference because reading is a dying. It looks like that, but you all know that when on the when Ambedkar, when Shivaji Park, everybody had gone to the place. One of the highest sale which has happened is reading. Books were the one which were sold in large number. And you know very well, books can create revolution in your life as well as in the society. Books have a lot of power. किताबों में बहुत ताकत होती है. सोशल मीडिया आपको 5-5 मिनट से ज़्यादा आपका अटेंशन स्पैन कैच नहीं करता है, तो आपको आदत पड़ गई है कि 5 मिनट से ज़्यादा कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, है ना? लेकिन किताबें, आपको किताबों का महत्व मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई एम व्हाट यू कॉल इट बुक किताबी कीड़ा. मुझे कहीं भी किधर भी मेरे हाथ में मेरे बैग में आपको किताबें मिलेंगी. किताबों की एक जादू होती है. क्या होता है कि अगर आप किसी भी लेजेंड का बात कीजिए, सोशल मीडिया में ज्योतिबा फुले का फेस आएगा, सावित्रीबाई फुले का फेस आएगा, उनका जन्म कुंडली जो है वो सब आएगा.
लेकिन सावित्री बाई के विचार जो हैं वो आपके मोबाइल में समा नहीं सकते। यू टू रीड द व्हाट शी रोट। उनके जो लेटर्स हैं, उनका जो चरित्र में, सिर्फ चरित्र जानना मतलब सावित्री बाई फुले को या अंबेडकर को जानना नहीं होता है। अंबेडकर के वॉल्यूम्स है किताबों के, और कुछ तो समझकर वो लिखे गए हैं। तो अगर हम अपनी छोटी सी सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर झांकेंगे तो ये किताबों की दुनिया है। उसमें क्या होता है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन फंक्शन करने लगता है, आपको इमेजिन करने को लगाता है। बेबीदाई कामले की किताबें हो या जो भी दलित लिटरेचर है, जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे सामने वो गांव आता है, मेरे सामने वो इंसान आता है, वो जिस भाषा में बात करते हैं वो लोग आते हैं, और वो मुझे सोचने में मजबूर करता है कि मैंने कास्ट पे काम करना जरूरी है। कास्ट का मतलब क्या होता है। सोशल मीडिया पे उसी के ऊपर एक फिल्म बना तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि हमने इतने चीजें देखी है सोशल मीडिया में, उसका कोई असर ही नहीं होता अपने ऊपर। बराबर है? कितना सोशल मीडिया पे दलितों पे अत्याचार होने वाले बहुत सारे सीन्स बार बार व्हाट्सएप पे आते हैं, उसका असर नहीं होता है। लेकिन आप किताबें पढ़ो, उसका असर होता है, डीप जगह पे असर होता है। इसी के लिए जरूरी है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड हैव मोर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस लाइक दिस वेयर ऑल ऑफ अस आर pushed to read something and pushed to take efforts, make efforts to bring it to all of us together. So ये book club, I am wishing that it should उसका और ज्यादा प्रगति हो, और लोग ज्वाइन करें और किताबें पढ़ें, और आप किताब पढ़ोगे तो और लोगों को भी आप वो किताबें, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि असाइनमेंट को अगर मैं बुक रिव्यू देती हूँ, बुक रिव्यू भी कॉपी पेस्ट करते हैं गूगल से, कोई पढ़ता नहीं है वो किताब। उसका रेडीमेड बुक मैंने ढूंढ के किताबें दी है जो शायद जिस बुक रिव्यू नहीं, लेकिन वो ढूंढ के निकालते हैं और पूरी तरह से छापा मार के वो रिव्यू देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं होता है। ये रेसिस्टेंस आपको ले डूबेगा, क्योंकि अगर ऐसा समाज आप चाहते हैं जहाँ पे विचारों में बदल हो, तो किताबों के सिवा कोई और चारा नहीं है। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वोकल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेचुलेशंस। Thank you, ma'am, for motivating all of us. Now we will move towards today's presentation of the students. So I would like to invite today's chairperson, Mr. Rahul Pandavare, and the panelist, Mr. Tejas Pawar, MS1, Ms. Zainab Sheikh, Mr. Vijay Sudha, Ms. Jyoti. Thank you, and over to Chairperson, Mr. Rahul. Thank you. Good afternoon. Hello, good afternoon. The open conference organized by Equal Opportunity है, इसका जो थीम है रीड एंड मीट लेजेंडरी। ये जो कंसेप्ट है इसका मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वाचा तो वाचा। इसका ब्रीफली अगर कहेंगे इतिहास अगर बनाया जाए तो दो चीज़ों का बनाने का अलग प्रोसेस है। याद रखने का दो चीज़ें, एक तो लिखने वाले का इतिहास रहता है और बोलने वाले का इतिहास रहता है। बोलने वाले का थोड़ा कम रहता है, लेकिन लिखने वाला एक्स्ट्रा मतलब बहुत सालों तक चलता है। तो किताबें पढ़ना क्यों जरूरी है, और किताबों का जो थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री वो बताऊंगा। किताबें वो जहाज है जो समय के विशाल महासागर को पार करती है।
लेखन की खोज ने मानव जीवन के प्रसारण के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान किया। इससे समाज का आपस में संवाद होने लगा और समय के साथ साथ मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ। प्रारंभिक काल में धार्मिक शिक्षा ही एकमात्र शिक्षा थी, परंतु जैसे जैसे मनुष्य समझदार होता गया, धार्मिक संस्थाओं से शिक्षा का संबंध शिथिल होता गया और जीवन के सब क्षेत्रों के बारे में विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता लिपि के कारण संभव हुई। शास्त्रों से विभिन्न दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से संबंधित मानव विचारों ने विश्व को समृद्ध किया और बाद के काल में साहित्य ने किताबें लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है और उनके साथ संचार का प्रभावी साधन प्रदान करती है। आज मनुष्य के समृद्ध विचार संसार में पुस्तकों का योगदान अमूल्य है। पुस्तक ने मानव समाज के सोच को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इन पुस्तकों ने आज की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रांति में अपना महत्व और प्रभाव बनाए रखा है। पुस्तकें सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक संघर्ष की दो परस्पर विचारधाराओं के बीच खाई को नष्ट करने का काम करती है और अनर्थक विश्लेषण के लिए संवाद और बहस के रास्ते खोलती है। और अगर हम इंडिया के हिस्ट्री में देखेंगे, हमारे नेशनल मूवमेंट रहेंगी या मार्जिनलाइज पीपल के लिए जिन्होंने काम किया है, उन महात्मा फुले रहेंगे, बाबा साहेब रहेंगे, महात्मा गांधी रहेंगे। अगर इन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली है, अगर बाबा साहब की प्रेरणा के बारे में बात करेंगे तो जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बंधुता, समानता और स्वातंत्र के जो मूल्य है, बाबा साहब ने रशियन रेवोल्यूशन से लिए। और थॉमस जेफरसन जिन्होंने अमेरिका का प्रेरक बनाया, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनसे प्रेरित होकर बाबा साहब ने किताबों से प्रेरित होकर यहाँ पर सामाजिक लोकशाही लाने की बात की है। क्योंकि पॉलिटिकल लोकशाही अगर अच्छी चलनी चाहिए या लोकशाही इस समाज व्यवस्था में अच्छी चलनी चाहिए, तो उसके लिए सामाजिक और आर्थिक लोकशाही की जोड़ होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने ऐसा कहा है। और इस सामाजिक लोकशाही का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत के इतिहास में यह रहा है कि जाति व्यवस्था को नष्ट करना, क्योंकि जाति व्यवस्था मानव की विभाजन नहीं करता, वो कामों का विभाजन करता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक लोकशाही इस देश के लिए बहुत जरूरी है। यह आज का एक किताबों से क्रांति होती है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और हैंड ओवर टू तेजस। Good afternoon, everyone. So today I am presenting book called Dalit in Modern India. The publisher is M.S. Michael. I will be presenting in Hindi. The book in Marathi language, so I have translated in Hindi. The book name is आधुनिक भारतातील दलित. First published in 1999. इसका मराठी अनुवाद आया था 2008 में. उसके बाद उसका दूसरा अनुवाद आया था 2018 में। इसका अनुवाद विद्या भाके इन्होंने किया है। सो डॉक्टर स्टीफन बुश, यह इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कल्चर, यह संस्था के संस्थापक है। यह संस्था बॉम्बे में है। इसमें मेन रूप से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र का स्टडी किया जाता है। भारत में दुर्लक्षित घटकों पर संशोधन करने वाले अनेक संशोधकों को यह संस्था प्रेरित साबित हुई है। जनवरी 2000 में स्टीफन भूषण का निधन हो गया। दुनिया भर में समाज में निसर्ग की तरह समाजशास्त्रीय बदल होते हैं। यह बदल अभ्यास की संक्षिप्तता समाजशास्त्र में की जाती है। आज दुनिया में आर्थिक, राजकीय, सामाजिक संबंध या समाज की असमानता जो वर्ग, जात, वंश, लिंग पर आधारित है और यह सामाजिक आसपास ही घूमते रहते हैं। भारतीय संदर्भ में बोला जाए तो मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में ही अभ्यासकों ने दलितों के अभ्यास करना चाहा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक पीढ़ी
सामाजिक पीढ़ी में आखिरी स्तर में दलित पाए जाते हैं और वह होने के कारण उच्च जाति, मध्यम वर्गीय, शहरी नागरिक जीवन, पुरुष प्रधान संस्कृति में सब में दलित हमें नीचे ही पाए जाते हैं। आज यह दुनिया के सामने सही तरीके में अपने हक मांग रहे हैं। समाज की वर्ण व्यवस्था बहुत उलझी हुई है। तब विभिन्न स्तरों का विचार विमर्श करने यह सब क्रम पद्धति गलत पैरों पर खड़ी है, यह दावा किया गया। दलित संघर्ष में सिर्फ कुछ लोगों का नहीं बल्कि संपूर्ण नई मानवता, जिसका पाया समानता के मूल्य, सामाजिक न्याय और मानवता की प्रतिष्ठा, इन सब पर है। दलित समाज शास्त्र का ध्येय दलितों के ज्ञान को आज के समय में दलितों को बंधन मुक्त करने के लिए आवश्यक है। इतने साल जमी हुई पत्थर, इसके बारे में ठीक से माहिती लेने के लिए समय की जरूरत है। यह ज्ञान होना आवश्यक है, तभी दलितों के प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, इन दलितों का प्रश्न हल कर सकते हैं। अभी हम दलित मतलब क्या वो जान के लेंगे। दलितों को अस्पृश्य भी कहा जाता है। भारतीय समाज जिधर उच्च नीचता की सीढ़ी है, उधर जातीय व्यवस्था के अनुसार अस्पृश्य सीढ़ी में सबसे निचले पैरों में पाए जाते हैं। यह अपवित्र है, इसका मुख्य कारण माना जाता है दलित यह अपवित्र है। दलित जनसंख्या 16% मतलब 1,38,00,000 दलितों को विविध नामों से भी समझा जाता है, जैसे अस्पृश्य, हरिजन। यह नराश्य नेता जिन्होंने इस्तेमाल किया गया वो महात्मा गांधी जी ने लोकप्रिय किया हुआ शब्द है, जात के बाहर के। यह शब्द एच हट ने इस्तेमाल किया था। मागासवर्गीय यह शब्द इंग्रज अधिकारी ने इस्तेमाल किया था। परिया यह शब्द तमिल भाषा में चर या चराई शब्द से लिया जा सकता है। इसका अर्थ ढोलकिया होता है। और प्राचीन काल में मेच्छाट, चांडाल यह शब्द मनु ने इस्तेमाल किया। पंचम यानी पांचवा वर्ण। 4 वर्ण है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौदह शूद्र। अवर्ण यानी कि 4 ही वर्णों में नहीं पाए जाते हो। साथ ही अस्पृश्यों को निषाद, पुलकेश, अत्यंत, अतिशूद्र आदि शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अनुसूचित जाति वह शब्द सर्वप्रथम अप्रैल 1935 में इस्तेमाल किया गया। इंग्रज सरकार ने भारत सरकार को अनुसूचित जाति जो आदेश 1936 में दिया, उसके मुताबिक कुछ जाति, वंश और जमाती यह अनुसूचित जाति के अंदर गिने गए। इसके पहले यह लोगों को गट मागासवर्गीय करके पहचाना जाता था। 1931 में वर्तमान के समय अस्पृश्यों का उल्लेख दलित करके सर्वप्रथम किया गया। 1970 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर चळवळ नाम से एक चळवळ स्टार्ट हुई और तभी दलित शब्द इस्तेमाल किया गया। जमीनी स्तर पर जो लोग उन्हें मूलभूत हक का वंचित रखा गया और जिन्हें निम्न जाति के कारण दलित कहा गया। दलित यह सामाजिक दृष्टया कमजोर, आर्थिक दृष्टया गरीब और राजकीय दृष्टया शक्ति होते हैं। जाति के बिना समाज को यह कभी भी महात्मा फुले जी ने कहा नहीं। उनका सपना था कि बिना जात का ही समाज में पाए। यह पूरा करने के लिए 24 सितंबर 1873 में महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और यह समाज की यह संस्था के अंदर लड़कियों और अस्पृश्यों के लिए पहली स्कूल स्थापन की। सबसे पहले जब आर्य भारत में आए तब इधर के लोगों को उन्होंने सबसे नीचे का दर्जा दिया। उन्हें वह खुद श्रेष्ठ मानते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अस्पृश्य मूल कारणों पर प्रबंध लिखा। इसका अस्पृश्य यह पुस्तक लिखा 1948 में। हिंदू और अस्पृश्यों में हुआ फर्क स्पष्ट किया। अस्पृश्यता के मुख्यतः 2 कारण माने जाते हैं। अस्पृश्यता लोगों के प्रति द्वेष, जैसा ब्राह्मणों को बौद्ध धर्म के प्रति था, और दूसरा गोपक्ष। सबने यह प्रथा छोड़ दी। कुछ भागों में यह प्रथा अभी भी चालू है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने आयरलैंड और वेल्स इन देशों में एक पुरावा लाया और बात रखी कि इन देशों में 9 साल के बाद अगर कोई बाहर के समाज का कोई आदमी हो तो उसका वो धर्म स्वीकार करता है, लेकिन अस्पृश्य समाज का हमारे देश में कभी भी स्वीकार नहीं हुआ गया। हमेशा उसे तिरस्कार की भावना से ही माना गया। ट्यूबॉइस ने वर्णन किया अस्पृश्यों के अभ्यासकों में, या अस्पृश्यों के अभ्यासक है, उन्होंने वर्णन किया अस्पृश्यों को उनके जन्म से दिखाया बताया जाता है कि वह गम है और
वो कम है और इसके कारण ही आज वो जाति में सबसे नीचे है। एक प्रश्न उनको हमेशा आता जाता है कि दलितों को कभी भी लगा नहीं कि उन्होंने ऐसा यहाँ विचार किया नहीं कि वो सब एक है, हम सब समाज एक है, सब लोग एक ही मिट्टी के हैं, चाहे वो कोई भी वर्ण के हो। साथ ही अगर कोई अमीर अस्पृश्य दलित धार्मिक श्रेणी के उच्च वर्ग में नहीं आता, अगर कोई अमीर वो दलित हो तो वो हमेशा नीचे वर्ण में आता है, लेकिन अगर ब्राह्मण अगर वो गरीब हो फिर भी वो धार्मिक रीत्या ऊपर ही आ जाता है। दो पॉइंट ने दिखाया, ब्राह्मण गांव में मुख्य भाग जिधर सारी दुनिया नजदीक है, सुविधा नजदीक है, वहां पर ही ब्राह्मण समाज पाया जाता है। उसी तरह अपनी जातीयता में दलित है सबसे बाहर, और जिधर गांव में किधर भी सुविधा ना उपलब्ध हो उधर पाए जाते हैं। 1970 में अस्पृश्य राजकारण में आए, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और खुद ही दलित पैंथर नाम दिया। यह युवकों का गठबंधन करता था, लिखने वाला था। मुंबई में इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ना मंजूर किया। दलित पैंथर की यह संस्था अभी कुछ जगह में ही चालू है। अभिमान और लड़ने की हिम्मत दलित पैंथर नाम से आती है। इन्होंने नई संस्कृति निर्माण की, वर्तमान पत्रों में दलितों पर होने वाले अन्याय हिंसा दिखाया। दलित शब्दों से अपवित्रता, प्रदूषण, अस्पृश्य यह अर्थ नहीं, तो एक साथ आया हुआ समाज, वर्ण समानता लाने वाला आंदोलन होता है। भारतीय अस्पृश्य यह कम से कम 1 शतक पुराने थे। काश पहले आधुनिक दलित ज्योतिबा फुले थे, उन्होंने इन दलितों के लिए आवाज उठाया। महाराष्ट्र में सामाजिक और स्त्री पुरुष समानता लाने वाले ज्योतिबा फुले सबसे पहले समाज सुधारक माने जाते हैं। गांधी जी जो हिंदू समाज सुधारक थे, उन्होंने मुताबिक अस्पृश्य खुद को हरिजन मानकर अस्पृश्य यह शब्द का दाग मिटा सकते हैं, मगर अस्पृश्यता कैसे गलत है यह गांधी हर बार बताते थे। उन्होंने एक दलित लड़की को दत्तक लिया था। उन्होंने अस्पृश्य के साथ रहना शुरू किया। हरिजन मतलब भगवान के लोग। अस्पृश्यता खत्म करने के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसकी वजह से अस्पृश्यों को आर्थिक स्थिति सुधारे। परंतु अपने दलित बांधवों की ताकत बढ़ाने के लिए अंबेडकर जी ने गांधी जी के साथ बड़ा संघर्ष करना किया। हिंदू समाज में दलितों को स्थान कौन सा, यह बड़ा प्रश्न था। अंबेडकर जी ने एक बार भारत स्वतंत्र हो जाए फिर अस्पृश्यों को जो इंग्रजों के सैनिकों ने जो काम दिए थे वह सब निकले जाएंगे और फिर से हमारा हिंदू समाज ब्राह्मण समाज दलितों को सिर्फ साफ सफाई करने के लिए या अमानवीय गंदे काम करने के लिए ही उनके पीछे पड़ेगा। इसलिए अंबेडकर जी ने सुझाव दिया संसद में मागासवर्गीय समाज कुछ जगह फिक्स करेंगे और उनके लिए मतदान करेंगे। इनके लिए स्पेशल मतदान संघ शुरू किया जाएगा। 1930 में भारतीय घटकों का आंकड़ा तैयार किया। समय इंग्रजों के दलित वर्ग के लिए अलग अलग कायदे बनाए। इसके अनुसार दलितों को उनका अलग मतदान संघ हो। गांधी जी ने यह बात को जोरदार विरोध किया। उन्हें दलितों के लिए अलग मतदान संघ मंजूर नहीं था। उनके हिसाब से हरिजन यही एक मतदान संघ होना चाहिए और यह हिंदू समाज के भीतर आता है। साथ ही जब भी दलित समाज का नाम आता है तभी E.V. रामास्वामी नायक यानी कि पेरियार बड़े संत थे, महात्मा थे। इनका जन्म 1871 में मध्यम वर्ग घर में हुआ। उनकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई और वैसे ही 6 साल होने के बाद यानी कि 19 साल के जब थे तब उन्होंने संन्यास लिया और वह भारत पर अपने धर्म का प्रसार किया। तभी उन्हें हिंदू धर्म में ब्राह्मणों से होने वाले लोगों का शोषण दिखाई दिया और उसके खिलाफ आवाज शुरू उठाया। द्राविड़ लोगों के लिए वो खड़े रहे, उनके लिए संरक्षण किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह कहते थे कि भारत भर के युवक बहुत है। बहुत जन का जन्म गांधी अम्बेडकर जी के 1956 के निधन के बाद हुआ। वह जानते थे सांस्कृतिक असमानता और आर्थिक असमानता यही मुख्य दलितों के कारण है। अम्बेडकर जी की लेखनी और कृति में एक धारा दिखता है और वह है सामाजिक आर्थिक बदल होना अनिवार्य है, इसलिए सांस्कृतिक क्रांति होनी जरूरी है। अम्बेडकर जी को जो एक ही बात था कि हिंदू अस्पृश्यों को
कभी समान अंक के अनुसार स्वराज्य का कुछ अर्थ नहीं अगर वह अस्पृश्यों की गुलामी खत्म न करे। यह सबका परिणाम दलितों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयुष्य पर हुआ। आर्थिक प्रगति, आरक्षण, उसके मदद इसके कारण दिखाई दे रहे हैं कि दलितों की शैक्षणिक प्रगति और आर्थिक प्रगति बढ़ रही है। साक्षरता 1961 में 10% साक्षरता पाई जाती थी, वही 1991 में 31.4% बढ़ी। सरकारी दफ्तर में दलितों यह कर्मचारी 1956 में 2 लाख थे और अभी वह 6 लाख पाए जाते हैं। दलित समाज सामाजिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या गरीब आहे व कमजोर, मात्र मानसिक दृष्ट्या व नैतिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर यह आत्मविश्वास से भरे और किसी भी व्यवस्था के साथ लड़ने के लिए तैयार है। और लास्ट की दो लाइन, अन्याय माझ्यावर झाला, अन्याय तुझ्यावर देखील झाला। हेच नव्हे, अन्याय करताना तुम्ही शांत होता, मीही शांत होतो, पण आता थांबूया। हे घेऊन पुस्तक वाचून समाज सुधार करणार, जगून विचारांना चल की सोबत घडवू जात, केवळ मानवता हा धर्म असेल व मानवता ही जात असेल। थँक्यू। तेजस ने जो हमें बताया वो 20 सेंचुरी में जो दलित की स्थिति थी वो बताई। जैसे कि अगर दलित शब्द का मनु ने जो वर्णन किया है, दलित यानी असुर, चंडाल, जो कि बुरे लोग, अगर आपको दलित दल से अच्छी सी पढ़नी है तो महात्मा फुले जी का गुलामगिरी नामक एक पुस्तक है, उसमें से दलित का पूरा हिस्ट्री और जो मार्जिनाइज्ड पीपल है उनका पूरा हिस्ट्री बता दिया है। और भारत स्वतंत्र होने के बाद मार्जिनाइज्ड पीपल को क्या मिला? माइनॉरिटीज को एक देश मिला पाकिस्तान, हिंदुओं को रूलिंग पार्टी मिली कांग्रेस। लेकिन अगर मार्जिनाइज्ड पीपल को क्या मिला? अगर दलित पैंथर का इतिहास, अगर दलित पैंथर फॉर्म क्यों हुई, अगर इसका एक रिपोर्ट है, अगर आप वो पढ़ोगे, विद्या जी के टाइम आया था तो उसके कारण ही मार्जिनाइज्ड दलित पैंथर थी, उनकी स्थापना इंडिया में हुई थी। और बाबा साहब अगर डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं, डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी या मेजोरिटी पार्टी का नहीं रहता। एग्जैक्ट डेमोक्रेसी का पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि माइनॉरिटी यानी कि जो कम पावर वाली पार्टी है उन लोगों का शासन रहना चाहिए। अगर उनको विचारों में नहीं आया तो अच्छी लोगों की होगी। थैंक यू तेजस। एंड नेक्स्ट जो हमारे पैनलिस्ट है वो रूपेश सुतार है, इस वर्ष से है, तो उनका भूपेश शिवाजी कौन होगा वो उनका पास है। नमस्कार मित्रांनो, मी रुपेश सुतार BHL मधून शिवाजी बोलत आहे पुस्तकांबद्दलची मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे। ती मराठीमध्ये सांगणार आहे, काही गोष्टी तुम्हाला हिंदीमध्ये सांगेल, पण थोडं समजून घ्या कारण त्या गोष्टीकडे मी प्रिपेअर केले। शिवाजी बोलत आहे याचे लेखक गोविंद पानसरे, त्यांनी आतापर्यंत 4 आवृत्त्या काढलेल्या आहेत। एक पहिली आवृत्ती आहे जी 1987 साली आलेली आहे आणि दुसरी चौथी आवृत्ती जी आहे ती 1991 साली आहे। तर मित्रांनो हे पुस्तक आहे शिवाजी बोलत आहे याचं। ओके, तर गोविंद पानसरेबद्दल म्हणायचं गेलं तर ते एक विचारवंत होते आणि त्यांचा खून करण्यात आला। आणि खून करण्यामागचं कारण असं होतं की समाजामधली जी जाती व्यवस्था आहे, जे स्ट्रक्चर आहे, त्या स्ट्रक्चरला कुठेतरी आळा घालण्यासाठी किंवा तो स्ट्रक्चर कुठेतरी ब्रेक करण्यासाठी त्यांनी काम केलं होतं आणि ते काम करतानाच त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला। तर मित्रांनो आतापर्यंत त्यांच्या पुस्तकाचे जे आहे 1.5 लाखाहून अधिक त्यांच्या प्रतिमा विकलेल्या गेल्या आहेत त्या पुस्तकाच्या। पुस्तक मित्रांनो 80 पेजेस आहे, पण त्या पुस्तकामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत। तर आता आपण खरं म्हणायला गेलं तर आपल्या समाजामध्ये एक विचार असा आहे की शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये ओके की त्यावेळी फक्त महिलांवर शोषण हे मुसलमानच करायचे किंवा मुस्लिम धर्म हाच करायचा। पण मित्रांनो इतिहास असं सांगतो, म्हणजे या पुस्तकात असं लिहिलेलं आहे की त्या काळी वतनदार, जमीनदार, पाटील, कोकणी जे कोणी असतील हे सुद्धा गोरगरिबाच्या ज्या सुना आहेत, लेकी आहेत, आया बहिणी आहेत, त्यांना म्हणजे रस्त्यावर ते चालत असल्या तर त्यांना हायदाशी उचलून घेऊन जायचे आणि त्यांना म्हणजे त्यांच्या पद्धतीने त्यांचा वापर करायचे। ही खूप मोठी गोष्ट आहे का त्या काळी सुद्धा गोष्टी व्हायच्या, आता सुद्धा त्या गोष्टी होत आहेत। खरं म्हणायला गेलं तर शिवाजी आणि धर्म आपल्या इथल्या लोकांना आजकाल तर म्हणायला गेलं
तर जन आक्रोश आंदोलन म्हणून खूप चालू आहे आणि ते फक्त हिंदू धर्मालाच घेऊन आहे. पण जर शिवाजी महाराजांबद्दल म्हणायला गेलं तर ते कधीच त्यांनी असं कटवून गेलेलं नाही की मी फक्त हिंदूंचा आहे. पण आपले इथं असं म्हणतात की शिवाजी महाराज फक्त हिंदूंचे राजा आहेत, त्यांचा मुसलमानांना द्वेष होता, ते फक्त हिंदूंसाठीच लढले आणि त्यांनी हिंदूसाठी सर्व काय केलं. पण एक खरं सांगायचं गेलं मित्रांनो तर शिवाजी महाराज हे सर्वांचे आहेत, बहुजनांचे आहेत, हिंदूंचे आहेत, मुसलमानांचे आहेत. या भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे शिवाजी महाराज आहेत, कारण त्यांनी इथल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी काम केलेलं आहे खरं म्हणायला गेलं तर. पण आपल्या इथल्या लोकांना ज्या प्रकारे सांगितलं जातं, आपले जे इतिहासकार आहेत, आपले जे विचारवंत आहेत, जे सांगतात की शिवाजी महाराज फक्त हिंदूंसाठीच होते, खूप मोठी गोष्ट मित्रांनो. कारण आपल्या समाजामध्ये चुकीच्या गोष्टी पसरवणं आणि आपल्या देशाला हिंदू राष्ट्र बनवणं हे जे विचार आहेत, ह्या विचाराला कुठेतरी आपल्यासारखे सोशल वर्कर स्टुडंटने काम केलं पाहिजे असं मला वाटतं. कारण खरं म्हणायला गेलं तर आपला जो भारत आहे, म्हणजे आपण जेव्हा बोलतो की आपला भारत, ह्या भारतामध्ये अनेक धर्म, जाती, पंथ, वर्ण, वर्ग अशा अनेक प्रकारचे लोक राहतात. मग फक्त हिंदूच आणि हिंदुत्व राजा असं आपण म्हणतो का? खूप मोठा प्रश्न आहे आपल्यासाठी मित्रांनो. शिवाजी आणि मुसलमान, तर मित्रांनो शिवाजी आणि मुसलमान यांचं नातं म्हणायला गेलं तर शिवाजी महाराजांचं आणि मुसलमानांचं खूप नातं चांगलं होतं. ओके, तर कसं काय तर शिवाजी महाराजांचा खास अंगरक्षक, शिवाजी महाराजांचा खास अंगरक्षक हा सुद्धा मुसलमान होता. आणि शिवाजी महाराजांनी कधी मुसलमान धर्माचा द्वेष केला नाही किंवा कुठल्या धर्माचा द्वेष केला नाही. ते हिंदू जरी असले तर ते त्यांच्या पुरते असायचे, ते त्यांना त्यांच्या धर्माचा स्वाभिमान वाटणारच, आपल्याला सुद्धा वाटतं तसं त्यांना सुद्धा वाटायला. पण ज्यावेळी ते कधी उठे लूट करायला गेले किंवा जर एखादी मस्जिद बांधायची किंवा मुसलमानांचा काही कार्यक्रम असेल तर ते स्वतः त्याला प्रोत्साहन करायचे आणि ते स्वतः त्यांना मदत सुद्धा करायचे. आणि उलट आदिलशाही असेल, औरंगजेब असेल, अकबर असेल किंवा जे कोणी असतील, इतर सुद्धा असतील, ते सुद्धा कोणाचाही कोणत्या धर्माला घेऊन द्वेष नव्हता. जसं आता सध्याला आपल्याकडे चालू आहे आणि अगोदर सुद्धा झालं होतं आणि इतिहासात लिहिलेली सुद्धा आहे हिंदू असेल मुसलमान. तर त्या गोष्टी त्या काळात नव्हत्या, कारण त्या काळी धर्म हा कधी श्रेष्ठ नव्हताच, तर राजे श्रेष्ठ होते खरं म्हणायला गेलं तर. मित्रांनो शिवाजी आणि मुसलमान सरदार, जसं मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं तसं शिवाजी आणि मुसलमान सरदार यांचं नातं एवढं भारी की ते एक प्रकारे सांगायला गेलं तर आपली जशी मैत्री असते त्या प्रकारे. कारण शिवाजी महाराजांच्या तोफखान्याचा जो प्रमुख होता तो इब्राहिम खान हा सुद्धा मुसलमान होता. शिवाजी महाराजांच्या जेव्हा आपली कोकणची जी किनारपट्टी ज्यावेळी ते आपल्याला म्हणजे शिवाजी महाराजांनी कोकण किनारपट्टी ज्यावेळेला बनवायची होती त्यावेळी त्याचा ज्यांनी प्रमुख बनवला होता आरमाना जेव्हा म्हणत होता तेव्हा त्याचा प्रमुख जो होता तो दौलत खान होता. त्यासोबत मित्रांनो शिवाजी महाराजांचा खास अंगरक्षक आणि विश्वासू माणूस मदारी हा सुद्धा मुसलमान होता. त्यासोबत तर सिद्धी हिलाल हे नाव तुम्ही इतिहासामध्ये खूप ऐकलं असेल. सिद्धी जोहर नाही का, सिद्धी जोहर नाही, सिद्धी हिलाल. कारण सिद्धी हिलाल हा नेताजी पानगळ यांच्यासोबत जेव्हा शिवाजी महाराज जेव्हा पन्हाळ्याला अडकले होते, सिद्धी जोहर आणि अफजल खानाचा मुलगा फजल खान या दोघांनी पन्हाळ्याला जेव्हा वेढा घातला होता तेव्हा तो वेढा फोडण्यासाठी सिद्धी हिलाल आणि नेताजी पानगळ यांनी तो फोडण्यासाठी त्यांनी काम केलं होतं आणि ते फोडण्यात ते अयशस्वी ठरले होते. कारण त्यावेळी त्यांच्याकडे सैन्य सुद्धा कमी होतं. पण सिद्धी हिलाल हा मुसलमान सुद्धा शिवाजी महाराजांसाठी का लढला असेल, त्यांचा मुलगा जो होता तो सुद्धा शिवाजी महाराजांसाठीच लढला. तो शेवटी जखमी झाला आणि सिद्धी जोहरच्या हाती सापडले दोघं मायबाप. ओके, पण मग ते शिवाजी महाराजांसाठी का लढले? जर शिवाजी महाराज आपले इथे लोक जसं म्हणतात शिवाजी महाराज फक्त हिंदूचे आहेत, तर मग ते लोक का म्हणजे मुसलमान ते होते ना, तर ते सुद्धा इस्लाम धर्मातून होते. मग ते का शिवाजी महाराज हिंदू होते, मग त्याच्यासाठी का लढले? हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे आपल्यासाठी. कारण शिवाजी महाराज जसं तुम्हाला म्हणाल शिवाजी महाराजांनी कधीच कुठल्या धर्माचा द्वेष केला नाही. त्यांना त्यांच्या धर्माबद्दल गर्व होता, आदर होता आणि बाकीच्या धर्माचा सुद्धा त्यांना गर्व आणि आदर होता. तर मला गेलं मित्रांनो एक गोष्ट खरी सांगू मित्रांनो, तर त्या काळी खास करू नका, त्या काळी धर्माचा प्रश्न हा कधी मुख्य नव्हताच. त्या काळी राज्याचा प्रश्न हा मुख्य होता. त्या काळी धर्म हे मुख्य नव्हतं तर राज्य मुख्य होतं. धर्मनिष्ठा मुख्य नव्हती तर राज्यनिष्ठा आणि स्वामीनिष्ठा ही खूप महत्वाची होती. मुस्लिम राज्यकर्ते जे होते त्यांच्या पदरी हिंदू सरदार. मित्रांनो आपण इतिहासामध्ये ऐकलं असेल
ज्यावेळी कोंढाणा जिंकला, म्हणजे ज्यावेळी शिवाजी महाराजांना कैदी करण्यात आलं आणि त्यानंतर कैदी करण्यासाठी जे एका हिंदू सरदाराला पाठवलं होतं, मिर्झा राजे. मिर्झा राजे तुमचे नाव ऐकून असेल इतिहासामध्ये. तर ते सुद्धा हिंदूच होते. आणि खरी गोष्ट म्हणायला गेलं तर शिवाजी महाराज यांनी म्हणजे ज्यावेळी कोंढाणा जिंकला, ज्यावेळी कोंढाण्यासाठी तानाजी मालुसरे जेव्हा लढले आणि ज्यावेळी ते मरण पावले आणि त्यावेळी किल्लेदार होता उदय खान नावाचा किल्लेदार होता. मित्रांनो, किल्लेदार सुद्धा हिंदूच होता, पण तो मुसलमानांचा सरदार होता. ओके, म्हणजे हिंदू होता पण तो मुसलमानांकडून सुद्धा तो लढत होता. त्यासोबत मित्रांनो जर खरं म्हणायला गेलं तर अकबरशाहीमध्ये 22.5% हिंदू होते. त्यासोबतच शहाजहानच्या सैन्यामध्ये सुद्धा शहाजहान जो होता त्याच्या सैन्यामध्ये सुद्धा 22.4% हिंदू होते. त्यासोबतच मुसलमान राज्यकर्त्यांमध्ये अगदी गडबड मानला जाणारा असा कोण तर औरंगजेब, त्याच्या सैन्यामध्ये पहिल्यांदा 21.6% हे हिंदू होते. त्यानंतर ते वाढल्यानंतर 31.6% झाले. मला सर तुम्हाला मागाशी बोललो की प्राचीन व मध्ययुगीन काळामध्ये धर्म व धर्मासाठी लढणे हे नव्हतेच. लढाया मुख्यतः राज्य मिळवणे, राज्य बळकावणे, राज्य टिकवणे यासाठीच केल्या जात होत्या खरं म्हणायला गेलं. पण आत्ताची परिस्थिती बघितलं तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, सांगायची गरज नाही. आणि त्यावेळी खास करून ज्यावेळी म्हणजे युद्ध व्हायचे किंवा ज्यावेळी गड जिंकण्यासाठी किंवा जागा जिंकण्यासाठी भांडण व्हायची त्यावेळी मुसलमान विरुद्ध मुसलमान सुद्धा झालेले आहेत असं इतिहासात नोंद आहे. त्यासोबत हिंदू विरुद्ध हिंदू आणि हिंदू मुसलमान विरुद्ध हिंदू मुसलमान हे सुद्धा झालेले आहेत. पण ती कशासाठी? राज्य जिंकणे, राज्य मिळवणे आणि राज्य बळकावणे यासाठी. या ठिकाणी कुठेही धर्मासाठी किंवा आपला धर्म श्रेष्ठ म्हणून भांडण करावे किंवा युद्ध करावे यासाठी कधी झालंच नाही. त्यासोबत मित्रांनो शिवाजी महाराज आणि मराठी आणि हिंदूंना विरोध का होता? शिवाजी महाराज हे सुद्धा हिंदू होते, पण त्यांचा हिंदू सरदार आणि हिंदूंना का विरोध होता? कारण आतापर्यंत शिवाजी महाराजांनी जितके काही कार्य केले त्या कार्यामध्ये कधी ना कधी एक नाही तरी काही ना काही फॉल्ट आले, म्हणजे प्रॉब्लेम झालेले आहेत. त्यामध्ये सुद्धा हिंदू सामील होते. खरं इतिहासात म्हणायला गेलं मित्रांनो, ज्यावेळी शाहिस्ता खान त्याच्या सैन्याला घेऊन शिवाजी महाराजांना पकडण्यासाठी आला होता तेव्हा सुद्धा त्यांना हिंदूंनीच मदत केली होती. कुणाला? शाहिस्ता खानाला. का? तर शिवाजी महाराजांना पकडण्यासाठी. आणि त्यामध्ये खरं म्हणायला गेलं तर मित्रांनो शिवाजी महाराजांचे रक्ताचे नाते त्र्यंबकरावजी भोसले, त्यासोबत जीवाजीराव भोसले, बालाजी राजे भोसले हे सगळे हिंदू, त्यांच्या रक्ताचे नाते. पण ती सुद्धा दोन विरोधकाला मिळाली. मग का? कशासाठी? तर त्यांना गाद्या पाहिजे होत्या, त्यांना राजेशाही पाहिजे होती, त्यांना सरदारकी पाहिजे होती, त्यांना वतनदारी पाहिजे होती, त्यांना किल्लेदार व्हायचं होतं, त्यांना सुभेदार व्हायचं होतं, त्यांना सेनापती व्हायचं होतं. म्हणजे इथला त्या काळीचा माणूस हा कधी धर्मासाठी लढलाच नाही, तो कधी जातीला किंवा जाती धर्माला कधी भांडण केलीच नाही. पण आता जर का बघितलं तर छोट्या छोट्या गोष्टी मित्रांनो भांडण हे तुमच्या समोरची खरी परिस्थिती. त्यासोबतच मित्रांनो खरं म्हणायला गेलं तर जिजाऊ माता त्यांच्या माहेरची जाधव परिवार, जाधव कुटुंब हे सुद्धा शाहिस्ता खानाला मिळालं होतं. खूप मोठी गोष्ट आहे. ज्या जिजाऊ मातांनी आमच्या भारताला एवढा थोर राजे म्हणता येईल असा राजा मिळवून दिला, त्या राजाची आईचे नातलग सुद्धा म्हणजे घरचे ते सुद्धा त्यांना भेटले होते. खूप मोठी गोष्ट मित्रांनो इतिहासामध्ये. पण आपण एकच गोष्ट घेऊन बसतो, नाही मी हिंदू तो मुसलमान, तो ख्रिश्चन मी पारसी, ह्याच गोष्टीमध्ये आपण अडून गेलो मित्रांनो. पण त्यासोबत एक गोष्ट म्हणायला गेली तर ब्राह्मण खास करून. तर मित्रांनो आता ह्या गोष्टी घेऊन मी मेन हात घालायचं कारण असा की ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला तर इतिहासामध्ये आपल्याला फक्त एकच राज्याभिषेक दिसतो इतिहासामध्ये. पण खरं म्हणायला गेलं तर शिवाजी महाराजांचे 2 राज्याभिषेक झाले. पहिल्या राज्याभिषेकाला महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मणांचा विरोध होता. जो राजा रयतेच्या हक्कासाठी, त्या रयते रुग्णांना शोषण्यासाठी जो लढत होता त्या राजाच्या राज्याभिषेकाला विरोध होता. याचं कारण असं की ब्राह्मणांनी असं म्हटले की हिंदू शास्त्राप्रमाणे राजाला अधिकार होण्याचा फक्त ब्राह्मण नाही आणि क्षत्रियांना. शिवाजी महाराज क्षत्रिय होते.
क्षत्रिय यांना होता. शिवाजी शूर असला त्यांनी राज्य कमवले असले तरी तो राजाच होऊ शकत नाही असं त्या ब्राह्मणांचं म्हणणं होतं. कुठल्या? महाराष्ट्रातल्या. आणि शिवाजी महाराजांची कर्मभूमी कुठली, जन्मभूमी कुठली? महाराष्ट्राची. खूप मोठी गोष्ट आहे. मग त्यावेळेस शिवाजी महाराजांनी गागाभट्ट यांना बोलवलं होतं. कुठून? काशीवरून गागाभट्ट आले होते. त्यांनी शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक केला. राज्याभिषेक झाल्यानंतर मित्रांनो ते जे ब्राह्मण आले होते त्या ब्राह्मणांना इतकं सोनं देण्यात आलं होतं की त्यांना गडावर उतरताना पण त्यांना जमत होतं, उतरायला सुद्धा त्यांना जमत होतं. हे इतिहास सांगतो, ते पुस्तक सांगते, मी माझ्या मनातलं सांगत नाही. ओके. त्यासोबत शिवाजीचा राज्याभिषेक झाला. त्या 13 दिवसानंतर जिजामातांचं निधन झालं. सेनापती प्रतापराव गुर्जर हे लढाईमध्ये मारले गेले. त्यासोबत शिवाजी महाराजांच्या पत्नी काशीबाई ह्या मृत्यू पावल्या. आणि पुन्हा काय झालं की नाही, राज्याभिषेकामध्ये काहीतरी विधा झालेली आहे. गागाभट्ट यांनी तुमचा राज्याभिषेक बरोबर केलेला नसल्या कारणास्तव आपल्याला पुन्हा राज्याभिषेक करावा लागेल. तो पुन्हा तेवढाच खर्च, पुन्हा सर्व गोष्टी, पुन्हा देवदेवतांना सर्वांना खुश करल्या, या सगळ्या गोष्टी. आणि मग त्या पूर्ण केल्या आणि मग त्यांनी राज्याभिषेक केला. एक गोष्ट खरी म्हणायला गेली मित्रांनो, आपल्या समाजामध्ये एक सर्वात मोठी गोष्ट व्हायला लागली ती म्हणजे ज्यावेळी अफजल खान शिवाजी महाराजांना मारण्यासाठी आला होता त्यावेळी भवानी मातेने अवतार घेऊन त्यांना तलवार दिली होती. ही गोष्ट खूप आपल्या इथे हे आहे. पण खरं म्हणायला गेलं की ती तलवार दिलीच नव्हती. ती तलवार पोर्तुगीजांनी बनवली होती. आणि ती तलवार अजून सुद्धा आपल्या इथल्या म्हणजे ती तलवार जी आहे त्या तलवारीवर पोर्तुगीजांनी लिहिले त्यांचे जे अक्षर आहेत ते अक्षर आहेत. आणि ही तलवार शिवाजी महाराजांनी युद्धामध्ये जिंकली होती, ती पण सावंतांकडून. आणि आजकालचा आपण जर म्हणाल तर आजकालचा आपला जो समाज आहे शिवाजी महाराजांना अवतार म्हणतो, देवाचा अवतार. पण शिवाजी महाराज अवतार नव्हते, ते आपल्यासारखे सर्वसामान्य माणूस होते. फक्त एवढंच की त्यांनी त्या काही प्रजेच्या रयतेच्या हितासाठी, त्यांच्या होणाऱ्या अन्यायासाठी त्यांनी लढले होते आणि काम केलं होतं. पण त्यांनी कुठेही त्यांनी देवाचा अवतार घेतला नाही किंवा देवाने त्यांना अवतार दिला नाही. पण आपल्यासारखे लोक जर एखाद्या साध्या नेत्याने आपल्या गटासाठी काम केलं तर आपण बोलतो की तो आमच्यासाठी देव माणूस आहे किंवा आमच्यासाठी देव आहे. आणि एक गोष्ट सांगायला गेली तर शिवाजी महाराजांना गौ ब्राह्मण प्रतिपालक असं म्हटलं जातं. पण शिवाजी महाराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक नव्हतेच. कारण तो असं म्हणतो की शिवाजी महाराज हे गाई, रयत आणि स्त्री यांच्यासाठी काम करत होते. म्हणजे गौ ब्राह्मण प्रतिपालक आलं कुठून हा प्रश्न जाता तो मला सोडून जातो. एवढंच बोलतो. जय मी आता मराठीतच बोलत, कारण रुपेशनी जे काही विश्लेषण केलेलं आहे त्या पुस्तकात ते अगदी गोविंद पानसरेंना विचारायला धरून केलं आहे. कारण मी काय बोलत, आपले शिवाजी जर समजून घ्यायचे असतील, आपले शिवाजी जर समजून घ्यायचे असतील तर गोविंद पानसरे शिवाजी कोण होता हे पुस्तक वाचलंच पाहिजे प्रत्येकाने. आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट की रुपेशने सांगितलं त्यावेळी धर्मयुद्ध आता जे इंस्टाग्रामवरती म्हणजे आपल्या सोशल मीडियावरती जे आपल्याला धर्मयुद्ध दाखवलं जाते आणि शिवाजी महाराजांची इमेज ही हिंदूंचे राजे म्हणून इथल्या फेसिस किंवा मनुवादी सरकारचं दाखवते, ते जर नष्ट करायचे असेल आपल्याला तर गोविंद पानसरेंचं पुस्तक वाचणं खूपच गरजेचं आहे. कारण महाराष्ट्र हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, पण आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये शोकांतिका होती, अशा विचारवंताचे खून केले जातात आणि त्यांच्या एवढी मोठी प्रशासन यंत्रणा असताना सुद्धा त्यांच्या खुनाचा तपास गेलं सरकार अजून पण घेत नाही. ही एक मोठी शोकांतिका आहे. आणि जी काय प्राचीन भारतातली किंवा आधुनिक भारतातली जी लढाई होती ती मुळात धर्माला धरून नव्हती, कारण ती कुटुंबातली लढाई होती. आपण इतिहासात जर पाहिलं तर एका भावाने सगळ्या भावाचा खून केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. कुटुंब उद्ध्वस्त झालेले त्या लढाईमुळे. आणि ज्योतिबा फुले म्हणतात, ज्योतिबा फुलेंनी शिवाजी महाराजांची पहिली जयंती साजरी केलेली रायगडावर. आज शिवाजी महाराजांना जे काही उपमा दिले जातात पण म्हणजे आपले ज्योतिबा फुले जे आहेत त्यांनी उपमा दिलेली फुलवाडी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराज, ही खरी उपमा शिवाजी महाराज. आणि शिवाजी महाराजांचा एक त्यावेळेस ते लेख जेव्हा सापडतात, शेतकऱ्याच्या पिकाच्या देठालाही धक्का नाही लागला पाहिजे ही त्यांची भूमिका होती.
आणि बाकीच्या राज्ये विलासी आयुष्य जगत असताना शिवाजी महाराजांच्या राज्यामध्ये एकट्याही स्त्रीचं नृत्य होत नव्हतं. हा खरा शिवाजी तर समजून घ्यायचा असला आपल्याला. गोविंद पानसरेंचं पुस्तक वाचणं गरजेचं आहे. आणि थँक्यू रुपेश. रुपेशची जी मांडणी होती ती खरंच हृदयस्पर्शी होती, खूप छान. अभी उसके बाद जो है हमारे BS1 के छात्र हैं ज्योति पलक करके, उनका जो बुक है लक्ष्मण माने का उपरा एक ऑटोबायोग्राफी है वो है. गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. मी बदल ज्योती BS1. मी आज उपरा या कादंबरीवर बोलणार आहे. राजमाता राष्ट्रमाता जिजाऊ स्त्री शिक्षणाच्या आद्य क्रांतीज्योती सावित्रीबाई व स्त्री शिक्षणासाठी व स्त्री सन्मानासाठी ज्या ज्या मायमाऊलींनी लढा दिला त्या प्रत्येक मायमाऊलीला, त्या प्रत्येक रणरागीला माझा माता समजतो. खरं तर उपरा म्हणजे काय, खरं तर उपरा म्हणजे काय, या उपरा या शब्दामध्ये त्याचा अर्थ दडलेला आहे. उपरा म्हणजे भटकणारा किंवा ज्यांना घर नाही असा उपरा. तर हे पुस्तक लक्ष्मण माने यांनी लिहिलेलं आहे आणि हे खरं तर त्यांचं जीवन चरित्र आहे. लक्ष्मण माने यांचा जन्म 1 जून 1949 मध्ये झाला. ते भारतीय सामाजिक कार्यकर्ते होते आणि एक मराठी साहित्याचे लेखक सुद्धा होते. त्यांनी अनेक प्रकारची पुस्तके लिहिली, जसं की मी का करायचं शिकून, म्हणजेच ते कैकाडी भाषेमध्ये आहे की मी का करायचं शिकून, म्हणजे मराठीमध्ये की मी काय करायचं शिकून, उद्ध्वस्त आणि बंद दरवाजा, अशा अनेक प्रकारची त्यांनी पुस्तके लिहिली. आणि उपरा हे पुस्तक आहे, त्या पुस्तकावरती जे पहिलं पृष्ठ आहे त्या पृष्ठावरती एक गाढवाचं चित्र आहे आणि त्या चित्रावर एक म्हणजे ते गाढवाचे चित्र आहे. त्या गाढवाच्या पाठीवर एक ओझं लागलेलं आहे आणि त्या ओझ्यामध्ये जे जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्या म्हणजे जे भटके कुटुंब किंवा भटक्या जमाती त्यांचं आहे आणि ते पाठीवर ओझं घेऊन ते जीवन प्रवास करतात. आणि हे पुस्तक म्हणजे एका कनिष्ठ जमातीचं जीवन यामधून व्यतीत केलेलं आहे. आणि जे कैकाडी समाजातील लोक आहेत त्यांचं अविभाज्य भाग म्हणजे बळी पद्धती किंवा अनेक अशा त्यांचा अविभाज्य भाग आहे, रूढी परंपरा इत्यादी. आणि त्यांच्या आत्मचरित्र लिहिताना लक्ष्मण माने म्हणतात की जेव्हा सण सोहळा असेल किंवा लग्न विवाह असेल, लग्न पद्धती असेल, तेव्हा जे लोक होते त्यांना दुय्यम प्रकारची वागणूक दिली जात होती. आणि ह्या लोकांनी म्हणजे कुटुंबामध्ये जे शिळे अन्न असायचे, जे अपर कास्टचे लोक असायचे किंवा मग दुसरे लोक असायचे, जे शिळे अन्न असायचे ते त्यांच्या निवारा म्हणून पूर्ण कुटुंबासाठी ते शिळे अन्न असायचे आणि त्या शिळ्या अन्नाच्या वरती हा सगळा कुटुंब अवलंबून असायचा. आणि त्यांची घरंही म्हणजे पूर्ण घाणीच्या ठिकाणी असायची, गावापासून खूप लांब असायची. आणि हा समाज शिक्षणापासून अजूनही वंचित आहे. त्यांच्या जीवनातील एक प्रसंग सांगते. लक्ष्मण माने जेव्हा लहान होते तेव्हा त्यांचे जे वडील होते बापू माने, त्यांनी लक्ष्मण माने यांना शाळेमध्ये नेऊन ठेवलं. तेव्हा त्यांना म्हणजे लक्ष्मण माने यांना माहीत होतं की शाळा म्हणजे काय आहे नेमकी. तर लक्ष्मण माने जाऊन बसायचे आणि शिकवतात काय ते पण नाही त्यांना कळायचं. आणि त्या दिवशी त्यांना म्हणजे त्या दिवशी त्यांना खूप वॉशरूम आलेले आणि ते शिक्षकांचं दुर्लक्ष करून बाहेर पडाले. आणि म्हणजे ते जेव्हा क्लासमध्ये होते तेव्हा त्यांच्या मनात वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार यायचे की म्हणजे तारे जमीन पर पिक्चर बघितला ना सर्वांनी, त्यामध्ये कसं तो ईशान नावाचा मुलगा असतो त्याचं लक्ष क्लासमध्ये नसायचं, म्हणजे बाहेरच असायचं. तसं त्या मुलाचं पण लक्ष क्लासमध्ये नसायचं आणि त्याच्या मनात त्याचे जे भाऊ बहीण आहेत ते सगळे त्यांच्याकडे त्याचं लक्ष असायचं. म्हणजे माझे भाऊ बहीण काय करत असतील, मासे पकडत असतील का, अशा विचारामध्ये ते लक्ष्मण माने होते. आणि नंतर शिक्षकांची नजर चुकून ते पळत जातात आणि नदीवरती जातात तेव्हा त्यांचे जे भाऊ बहीण होते ते मासे पकडतात. आणि त्याच रात्री त्यांची आई बोलते, त्या लक्ष्मण मान्यांना बोलते की तू शिकून काय करणार आहे, आणि त्याला बोलते त्या शिक्षणामध्ये बोलते की तू शिकू नको, तू कामाला लागत असत. आणि हे त्यांचं बोलणं ऐकून लक्ष्मण माने यांचे वडील ऐकतात आणि त्या रात्री त्यांच्या बायकोला म्हणजे लक्ष्मण माने यांच्या आईला खूप मारतात आणि ते बोलतात तू अशी का म्हणतेस, कारण माझ्या पोराला मला शिकून मास्तर बनवायचे असं ते म्हणतात. आणि नंतर मग तिथून ते ठरवतात की काय झालं तरी मी शिकेन आणि बाबांचं स्वप्न पूर्ण करणार. आणि माणसाला माणूसपणाची जाण असायला हवी अशा पुस्तकामध्ये काही प्रसंग दिलेले आहेत. स्त्रियांच्या बाबतीत प्रसंग म्हणायचं झाला तर एक वेळा असं झालेलं की एक महिलेने म्हणजे जी कैकाडी समाजातील होती, गरीब होती, तिने तिच्या पैशांनी नवीन लुगडं घेतलेलं आणि ती नेसली. आणि जे अपर कास्टचे लोक होतं
केलं आणि त्यांच्याकडे पैसे नसतानाही ते म्हणजे कॅन्टीनमध्ये किंवा मग एखाद्या हॉटेलमध्ये काम करायचे किंवा मित्राच्या रूमवरती जाऊन राहायचे. अशा प्रकारे त्यांनी शिक्षण पूर्ण केलं. आणि आजच्या स्त्रियांची स्थिती म्हणायची गेली तर आज पण मुलींना चांगल्या प्रकारे दर्जा दिला जात नाही. असं आज समाजामध्ये म्हणतात की शांत मनमोकळेपणाने वागले तर मुलीला घरचं बंधन नाही असे म्हणतात. जास्त मित्रमैत्रीण असले तर बोलतात की ही खूप टवाळखोर असेल. खूप शिकलेली असली तर बोलतात एवढं शिकून काय कामाची, डोक्यावर विरे वाटत फिरे. आणि शिकलेली नसली तर असे बोलतात की मागा असलेल्या विचारांचे जग. अशा दुतोंडीत जगात स्त्रियांनी जगावं तरी कसं, निरपराधी असतानाही टरकारीला घालून मरावं तरी कसं. एक न्यूज पेपरमध्ये एक लेख आलेला, त्यामध्ये असं होतं की मुंबईमध्ये कैकाडी या शब्दाला शिवी म्हणून वापरतात. आणि खरंच ते मुंबईमध्ये आल्यावर मला कळालं. आणि मध्य प्रदेशमध्ये असे महाराष्ट्रात पण आहेत आणि आंध्र प्रदेशमध्ये पण आहेत. कैकाडी समाजामध्ये अनेक जाती आहेत. तर कैकाडी समाज म्हणत होता की आम्हाला अनुसूचित जातीमध्ये ॲड करा. तर ज्या काही जाती होती त्यांना अनुसूचित जातीमध्ये मध्य प्रदेशमध्ये कैकाडी समाजाच्या अनेक जाती होत्या आणि आहेत ते सुद्धा. तर त्या जातीमध्ये काही लोक म्हणजे काही जाती होत्या त्या म्हणत होते की आम्हाला अनुसूचित जातीमध्ये ॲड करा. तर काही जातींना अनुसूचित जातीमध्ये ॲड केलेलं आहे अजूनही आणि काहींना अजून नाही. कैकाडी म्हणजे त्याचा अर्थच आहे, कै म्हणजे हात आणि काडी म्हणजे खांद्या, अशा प्रकारे त्याचं वर्णन केलेलं आहे. आणि शेवटी लक्ष्मण माने असे म्हणतात की जे जगलो जे भोगलं ते अनुभवलं, जे जगलो जे भोगलं ते अनुभवलं ते तसंच लिहत गेलो. पुन्हा एकदा तेच जगणं जगत गेलो, पुन्हा एकदा तेच जगणं जगत गेलो. पिढ्यापिढ्यांचं विराट डोक्यावर घेऊन गाढवाचं जीवन जगणाऱ्या मंडळीच्या या वेदना समजावून घेतल्या तरी खूप बरं होईल. आणि शेवटी मी एकच म्हणू इच्छिते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला मूलमंत्र दिला, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. आणि आता कुठेतरी आपण संघटित व्हायला लागलो, शिकायला लागलो. तुम्हाला मी सांगते, मी आदिवासी मायबापच पोरगं नुसतं मायाच्या गर्भात जन्माला आलं तर त्याचा हाडाचा आणि मासाचा गोळा म्हणून या देशाचा गुलाम म्हणून जगलो असतो. पण माझा दुसरा जन्म या देशाच्या राज्यघटनेच्या माध्यमातून एक महागर्भाशय विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केले. त्यामुळे ही जनता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना कदापि विसरणार नाही. वेळ करून मी माझे 2 शब्द संपवले. लक्ष्मण माने की आत्मचरित्र है और उनके आत्मचरित्र में हम सबको कैकाडी समाज के बारे में मालूम नहीं है. रिसेंटली नागराज मंजूर की 2 साल पहले एक फिल्म आई थी फैंटी करके. उस जगह जो रहता है, सबने देखा है क्या? जगह जो रहता है ना, जगह वो कैकाडी समाज का रहता है, उसका काम है. और बाबा साहब और गांधी जी का जो कॉन्फ्लिक्ट था, तो बाबा साहब गांधी जी को कहते हैं, गांधी जी मुझे मातृभूमि नहीं है. उसका कारण ही यही था कि आज भी मार्जिनलाइज पीपल के जो बच्चे हैं, जो समाज है, वो गांव के बाहर ही रहता है. इसलिए बाबा साहब ने गांधी जी को कहा था कि मुझे मातृभूमि नहीं है. तो आज की हमारी स्थिति अगर आप देखोगे, मार्जिनलाइज पीपल की स्थिति आज देखोगे तो बहुत ही बुरी है. तो उनका जो शैक्षणिक इसमें पार्टिसिपेशन, जो हाई क्लास की जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है उसमें पार्टिसिपेशन, राजनीतिक पार्टिसिपेशन बहुत ही लेस है. और 1991 में हमारा गवर्नमेंट, भारत सरकार प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और यूटिलाइजेशन जैसी पॉलिसी लाती है और आरक्षण खत्म करने का, और यहाँ के जो डिप्राइव्ड क्लास के पीपल है उनको वैसे रहने का एक एजेंडा तैयार करती है. ये सब कुछ है. तो हमें इसके ऊपर एक सोशल वर्क एक स्टूडेंट और क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के समाज में एकता के खिलाफ जो बीच पेले जा रहे हैं वो हमें देखना बहुत जरूरी है. तो थैंक यू. और जो नेक्स्ट जो है हमारे पैनलिस्ट जनाब इस्ताइक आई एम मलाला, ये जो बुक है मलाला की ऑटोबायोग्राफी, उनके बारे में बताएंगे.
the gunman demanded, "I am Malala and this is my story." Malala was a girl who loved going to school and was shot by Taliban for the same reason. Fortunately, she survived and did not give up. Instead, she fought for the basic right of education for every child in Pakistan. The Yusufzai is one of the biggest tribes in Pashtuns from Pakistan and Afghanistan. She has also described the land where she stays very beautifully. Her home was in Pakistan, where Swarpere, in a town named Migora, which is also considered as one of the most pleasing places in Pakistan. She has also said that one of the most Swarpere looks like heaven on earth. Her family was very loving and caring, especially her father, Ziauddin Yusufzai, who had been supporting her since the day she was born. Malala was the oldest child of her family and had 2 brothers. Her father always supported education and believed in the power of words and pen. He started his own school and became a part of many educational social organizations, saying that he would join every platform that will spread education in Pakistan, making a better place. Malala was a bright child from her school. She enjoyed studying and participating in other things. She had a best friend named Muniba, and they would encourage healthy competitions with each other. Things were going good and fine until one day a group of people called Taliban came in their land and started to interact people through religious aspects. They started a radio station as Radio Mullah. In the beginning he would talk about how one can become a pious Muslim and please God. People liked listening to him. Slowly and steadily he began to manipulate people, saying men should not shave their beards and women should not go out of their houses until and unless it's an emergency, which is not very much true about the religion. Then they started to take away all their electronic medias and entertainment things, saying it is haram, impermissible. Many people came in their influence and supported him, which provided them guts to continue the things they were doing. Situation was getting even worse and no one was doing anything. Even the government of Pakistan was sitting with hand in hand. People got so blind that they would give all their money to Taliban because they thought they were the saviors of their lives and they were helping them to become a better Muslim. They started blasting schools and made it very difficult for girls and women to step out of their houses. Children had to hide their books and bags in their clothes and shawls while going to school. Malala would go with her father for interviews and give speeches for education. Her father would say, even though she was just 15, she would talk like a politician and laugh and make fun of her. And with that, things started to move out of control. The Lal Masjid in Pakistan, which was considered as a holy place for girls to get religious education, turned out to be the training for them to become suicide bombers in the name of Shahada, martyrdom. The founder of the Lal Masjid were terrorists and they brainwashed the students saying that they would go to heaven, which one of the founder was caught. And then the Taliban threatened the whole Pakistan, saying that they will declare a war against the whole Pakistan. Taliban was not just in Pakistan, it was also in Afghanistan and Waziristan. The list of destruction by Taliban was going on, and more things were getting added on to it. One day, on 9th of October 2012, as usual, Malala was going to school in the bus with her other friends. And suddenly a man came and barged in and asked, "Who is Malala?" All her friends started to stare at her. Then he pulled out a gun and shot 3 bullets on her. One of the bullets entered and exited her head and lodged in her shoulder. She was immediately flown to England in the Queen Elizabeth Hospital. इसे कहते हैं ना, खुदा का करिश्मा होता है, वो अपने बंदों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देता. This is the best example that the other country helped her. ताकि देखा जाए तो वो सिर्फ 15 साल की लड़की थी, उसकी मौत से किसी का कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे सबूत मिलता है कि इंसानियत और खुदा की निगाह आज भी जिंदा है. She had a severe condition and everyone is denied in her country. It was not just an accident that the girl nearly met her death. Some of the people were praying that she would come back to her country and some thought that she was already gone. But she won. She survived and made it back to her dearest homeland, Pakistan. After coming back, she continued to stand for education and became an inspiration for many girls just like me. She became an ideal. She got the Nobel Prize in 2014 for peace for her fight for right to education for every child and received it in that was the story of a brave girl, Malala. The struggle was rough and unpredictable.
unpredictable and painful. So the people like Taliban use religion as an excuse for their ideas and beliefs. They have nothing to do with humanity and faith. आज भी लोग इस्लाम या मुसलमान को एक ऐसा मजहब समझते हैं जो लोगों पर खतरा बोल सकता है, लेकिन जब हम आतंकवाद की बात करते हैं तो उसमें कोई धर्म या फिर कोई मजहब नहीं आता है। ये लोगों की अपनी सोच है जो उन लोगों ने तबाही मचाने के लिए शुरू की है। सिर्फ वो लोग किसी तिनके का सहारा ढूंढते हैं, जैसे किसी भी मजहब का नाम लेना। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब सिर्फ इंसानियत होता है और ये हर मजहब हर धर्म हमें सिखाता है। मलाला जैसी लड़की की स्टोरी सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसे गोली लगी थी या फिर वो मौत को छूकर वापस आई। उसकी स्टोरी इसलिए थी कि जो उसका सफर था स्कूल से लेके नोबेल प्राइज पाने का या फिर गोली खाने का, वो आसान नहीं था। ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। उन लोगों को धमकियाँ आती थी, especially being a girl in a Muslim culture, it was not easy at that times in Pakistan. जब तालिबान ने पूरा शोर शराबा तहलका मचा के रखा था, लोगों का जीना हराम करके रखा था, उसके बावजूद उन लोगों ने और स्पेशली उसके फादर ने, जिन्हें बहुत जुनून था अपनी बेटी पर, उन्होंने उनका नाम मलालाई करके एक एक्ट्रेस थी अफगानिस्तान की, उसके नाम पर रखा था और उन्हें यकीन था कि वो बेटी उनकी सबसे लगती, जबकि लोग कहते थे अरे बेटी हुई है। But he had that, कि she is my daughter और ये मेरे घर की रौनक और बरकत बनी। So now I would like to end my words with saying with a saying in Pashtun that say, Pashtuns do not say thank you because they believe that kindness can be regained with the act of kindness and not just few words of expression of action. And I think it's beautiful. Thank you. हेलो, थैंक यू जनाब। मलाला जो है उनके नाम में ही उनका मतलब लिखा है। मराठी में मला लढावे लागेल, क्योंकि अगर शूट होने के बाद भी किसी का लड़ने का जो ये है जुनून है अभी तक भी चालू है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान जो राष्ट्र है वो धर्मों को मानने वाला राष्ट्र है। और मार्टिन लूथर किंग कहते हैं अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो लोगों को धर्म के नाम से लड़ाओ। इसलिए बाबा साहब का जो अप्रोच था, उन्होंने मार्टिन लूथर किंग को भी वो मानते थे। इसलिए हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट जो है उसमें जो भी मेंशन है, पहले अपने धर्म को अपने घर के अंदर रखो, बाद में आप जब आओगे वी आर फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन। और अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछ सकते हैं। रॅली पकडून ठेव, पडला असता मी ना हवे ते धक्का पडला असता बाबा काय खाली Anyone has any question? If you want to share any thoughts, you want to comment anything, you can. Anyone? Soumitra has a question. Actually, I want to ask
एक्चुअली इन अवर कंट्री जो कि हम लोग देखते हैं राइट नाउ जो पॉलिटिशियंस है वो धर्म और जात के ऊपर सबको डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हैं। द मेन कंसर्न ऑफ अस बिकॉज वो इजी जाता है, वो डिवाइड करने का उन्हें पॉलिटिक्स करना इजी जाता है। तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या एक्शन ले सकते हैं? आपको आपके एक गोष्ट सांगायची कि मतलब एक चीज़ बताऊंगा आपको कि जैसे आपने बताया कि कास्टिज्म को लेकर, तो हमने अभी जो आपको हमने अभी जो बुक्स पढ़ी, जैसे दादा ने पढ़ा है, जैनब ने पढ़ा है, हमारे छोटी ने पढ़ा, मैंने पढ़ा है, तो अगर ये बुक भी मतलब जो बच्चा जो हमारे मतलब जो स्कूल में अगर किसी भी महापुरुष का अगर हम इतिहास देखे जाएगा तो चौथी का सिर्फ शिवाजी महाराज का सिर्फ चौथी में 4th स्टैंडर्ड का जो बुक है उसमें इसलिए, उसके अलावा आपको कहाँ पर भी सिखाई नहीं जाएगी। और खास कर कास्टिज्म को लेकर बोला जाए तो इस म्हणजे ह्या इथे म्हणजे आपल्या ह्या समाजामध्ये हे गोष्टी ज्या आहेत ह्या बनवल्या गेल्या आहेत, ह्या बनलेल्या नाहीये, ह्या बनवलेल्या गोष्टी आहेत। आणि ह्या गोष्टींना जर संपवायचं असेल तर आपल्यासारख्या सोशल वर्करांना राजकारण असेल इथं भारतामध्ये जे कोणतं क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला उतरावं लागेल आणि त्या क्षेत्रातल्या लोकांना सांगावं लागेल, जागून सांगावं लागेल। जसं इलेक्शन आले की जसं दाट ठोकून सांगतात ना की आम्हाला वोट द्या, तसं आपल्याला दाट ठोकून जाऊन सांगावं लागेल की हे पुस्तक वाचा, शिवाजी कोण होता, आय एम मलाला हे पुस्तक वाचा, दलितांचा इतिहास वाचा, जे पुस्तक आहे ते वाचा, तर त्यांना कळेल की कास्टिज्म नक्की काय। बरोबर सांगा, कारण आता जो समाज है ना हा जातीमुळे विभागला गेला आणि मतलब अभी का जो समाज है वो कास्टिज्म को लेकर पूरा ऐसा डिवाइड किया गया है कि मैं उच्च जात का, जो नीचे जात का, मैं भी ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। तो वो जो है ना तो उसको कहाँ पर तो हमें रुकाने के लिए ना हमें भी कहाँ पर तो आगे आना बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों को बताने जाएंगे तो हमें भी कुछ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये कास्टिज्म है ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि इसको खत्म करना होगा तो हमें बहुत समय लगेगा और इस समय को हमें पार करने के लिए हमारे जैसे एक रुपेश नहीं तो अनेक रुपेश बनाने पड़ेंगे, गोविंद पांच नहीं तो अनेक आने पड़ेंगे। उसके साथ साथ अम्बेडकर एक नहीं तो 1000 आने पड़ेंगे, आने वाला एक नहीं आएगी तो 1000 आएगी। जैसे सावित्रीबाई फुले ने जब महिलाओं की स्कूल खोली थी तो एक ही थी, पर अभी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं पढ़ रहे हैं ना, तो ये जब इम्प्रूवमेंट होगा ना तभी ये कास्टिज्म कहाँ पर खत्म होगा। और मुझे भी लगता है खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये दौरा है ना दौरा, ये स्ट्रक्चर जो है ये कभी ना कभी तो टूटना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। हेलो, मेरा क्वेश्चन है तेजस को, हरिजन ये शब्द बाबा साहब जी ने क्यों रिजेक्ट किया था? हेलो, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा हरिजन का मतलब है भगवान के लोग। तो बाबा साहब जो भी मानते थे, जो हमें सोशल वर्क में भी सिखाया जाता है, वी आर क्रिटिकल थिंकर। सो अगर किसी ने भगवान देखना नहीं है तो क्यों बाबा साहब हरिजन के शब्द पे भरोसा रखे? और जो हरिजन शब्द है वो हिंदू के अंडर आता था, तो बाबा साहब मानते थे दलित या हिंदू के अंडर नहीं आते, वो एक स्पेशल है। तो हरिजन ये शब्द इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर हरिजन शब्द को मानते रहे। आंसर क्लियर? I mean, it's really wonderful to listen to all of you. Just ये जो सौमित्र ने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड आपको सबको ये जानना जरूरी है कि अभी जो मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा कैंपेन चलता है तो वो एप्रोप्रिएट करते हैं लेजेंड्स को। एप्रोप्रिएट करना मतलब शिवाजी को हिंदू का राजा बना देना, मुस्लिम के अगेंस्ट में लड़े थे, धर्म के लिए लड़े थे, भगवे झंडे के लिए लड़े थे, ऐसा मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इंटरप्रेट कर रही है सारे लीजेंड्स के बारे में। तो अगर इसको फाइट करना है तो ओरिजिनल वर्क पढ़ो, ओरिजिनल इतिहास पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स छुपे हुए हैं। और वो जब तक आप लोग, जैसा उसने बहुत अच्छा बताया कि धर्म के बारे में युद्ध हुए ही नहीं है, लेकिन हर चीज हमको धर्म युद्ध के जैसे बताते हैं। पद्मावत ने भी बोला धर्म युद्ध है, हर चीज धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है ही नहीं।
तो ये जब तक हम लोग खुद इतिहास नहीं पढ़ेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड रहेंगे। और वही चाहते हैं अभी की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वही चाहते हैं कि हम लोग पूरा वो बताए वो इतिहास माने, सच इतिहास नहीं मानेंगे। और जो आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन करो अपने आप को, तो गोविंद पानसरे जैसा पर्सन जो सिर्फ लिखता था, कभी वो कोई टेररिस्ट नहीं था, उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, वो गुंडा मवाली नहीं था, कुछ नहीं था, फिर उसको गोली डालकर क्यों मारा गया, ये पूछो तो आपको जवाब मिलेगा कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए। ओके, थैंक यू। अंतर है जैसे कि आपने किसी ने बताया था कि अंबेडकर और गांधी जी के व्यूज में बहुत डिफरेंस है, तो अगर आप एलैबोरेट कर पाए कि क्या डिफरेंस है तो इट वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू। तो मतलब मैंने जो एक चीज़ पढ़ी हो वो बताऊंगा कि जब संविधान और जब आरक्षण की चीज़ आती थी, तो एक चीज़ होती थी कि गांधी जी का ऐसा कहना था कि जो, मतलब आपको एक एग्जाम्पल करके, मतलब अभी एक बिल्डिंग है हमारी, ओके, तो एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में होना चाहिए कि ऊपर मतलब जो कास्टिज्म के हिसाब से वैसे, और ये जो बिल्डिंग होगी ना, इस बिल्डिंग को सीढ़ियाँ नहीं होगी या फिर लिफ्ट नहीं होगी, ऐसा उनका कहना था। इसका गांधी जी का, ओके, मैं किसके खिलाफ या फिर मैं किसके आगे, मतलब किसके सपोर्ट नहीं कर रहा, ओके। और सॉरी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा कहना था कि सिर्फ सबको इक्वल, फर्स्ट फ्लोर तो सबको फर्स्ट फ्लोर, फिर जो जैसे बढ़ेगा, जिसको लग रहा है मुझे सेकंड फ्लोर बनाना है सेकंड फ्लोर बनाएगा, जिसको लग रहा है मुझे थर्ड फ्लोर बनाना बनाएगा। बट ऐसा गांधी जी का कहना नहीं था, उनका था कि एक ही बिल्डिंग बनेगी जिसमें सबसे नीचे जो हमारी कास्ट है, जो हमारा भी है, ऊपर ओबीसी एससी एसटी, ये प्रकार से जो सिस्टम है उस प्रकार से सिस्टम रहेगी, जिसको बिल्डिंग को सीढ़ी और लिफ्ट नहीं होगी, ऐसा उनका। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, ऐसा उनका कहना है। इसके क्वेश्चन का आंसर यही है कि गांधी जी का जो वर्ण व्यवस्था है उस पर भरोसा था। वो मानते थे हर वर्ण व्यवस्था जो बनी हुई है उसके लिए ही बनी हुई है। जो ब्राह्मण है वो पंडितों का काम करेंगे, जो शूद्र है वो जिंदगी भर जो भी शूद्र पैदा हो वो नीचे का ही काम करेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी मानते थे अगर वो शूद्र पैदा हुआ है तो उसकी गलती क्या, उसे भी अधिकार है वो ब्राह्मण होने का। तो इसके लिए गांधी जी और अम्बेडकर में फर्क पाया है। I don't think so. Gandhi said, Mahatma Gandhi said anything that Varna system should be kept, or that there should be the same strata of the society. They just, I don't think so. Gandhi said that. सर गांधी जी वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते थे? No. See, in fact, he broke down that through his Gandhi ashram, where he went there and he set up an ashram in order to prove the point that anybody can be anybody by even washing toilets. And this cleanliness campaign, which our great esteemed government is putting up, is not Gandhi's work. But he was trying to break down that entire system to show that we are all equal. This is what I believe. I don't know if anybody else has the same opinion. I disagree with you. Dear panelists, I want to appreciate you all because you have all done a great job. The way you explain things and the book reviews was great. Like I can't believe you are from BS ones and MS ones. So you have done a great job. That's a great. I have one question for all the panelists. Like I as an individual think Baba said great resistance for like Pune Pact happened. Pune Pact, Pune करार झाला, गांधीजी सोबत करार झाला की फक्त रिझर्वेशन सीट्स मिळतील. सो बाबासाहेबांनी त्या काळामध्ये इतका रेजिस्टन्स फेस केला टू हॅव रिझर्व सीट्स सगळ्या मागासवर्गीयांसाठी, सगळ्या मागासवर्गीयांसाठी, नॉट लाईक असं प्रॉपर एका कास्टसाठी वगैरे. तर म्हणजे त्यांनी तेव्हा इतका काय म्हणून प्रयत्न केला की फक्त रिझर्व सीट्स मिळाल्या. आफ्टर इंडिपेंडन्स
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म केली, जी बाबासाहेबांनी फॉर्म केली. मग म्हणजे रिझर्व्ह सीटसाठी एवढा प्रॉब्लेम, मग एक पक्ष बनवण्यासाठी एवढा प्रॉब्लेम फक्त बाबासाहेबांनी केला. आणि आफ्टर बाबासाहेब आपल्याकडे प्लेंटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आहेत. म्हणजे काय म्हणतो की आयडिओलॉजिकल भांडणं असतील किंवा काही ब्रेन स्टॉर्मिंग होत नसेल, त्यांना काही पटत नसेल, तर त्यांनी ते सेटल डाऊन करावे आणि एकच पक्ष असावा. कारण आपल्याकडे आधीचा नंबर काउंट कमी आहे. सो वोटर्स जर 10 लाख लोक एकेका व्यक्तीला वोट करणार आहेत, त्यापेक्षा 1 करोड लोक एकाच व्यक्तीला वोट करतील. सवाल ये था कि मतलब बता रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत रेजिस्टेंस फेस किया जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन सीट के लिए या फिर पॉलिटिकल पार्टी के लिए. तो इतना सब रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने खुद बनाई आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस. लेकिन आफ्टर बाबा साहेब व्हाट हैपेंड कि एक स्केलर में प्रोग्रेस चल रहा था, या फिर स्केलर एक दिशा थी, एक चीज की दिशा चल रही थी, तो वो दिशाहीन हो गया. बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज बन गए, बहुत से वोट्स डिवाइड हो गए. तो आपको क्या लगता है कि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो तो जो 10 लाख लोग वोट करेंगे एक आदमी को, या फिर 1 करोड़ लोग एक ही आदमी को वोट करेंगे, इससे हम लोग विधानसभा में जाके हमारे प्रॉब्लम्स या इश्यूज और ग्रेटली एड्रेस कर सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है? आपकी क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से है कि अगर एक पार्टी रहेगी तो शायद हमारा भारत एक कुकुत्सा हो जाएगा, जो अभी वो बोर्ड पे चल रहा है, अगर एक पार्टी रही तो. और तो दूसरा आपका था कि अपने भारत देश में 125 की आबादी है, तो हर की मेंटालिटी थॉट प्रोसेस अलग है. तो एक हमारे कॉलेज में भी अभी इतने अलग अलग बच्चे, तो एक प्रोग्राम होने के लिए भी मी सगळ्यांची एक पॉलिटिकल पार्टी नाही बोलत आहे. म्हणजे आता जशी BRSP आहे, RP आहे, वेगवेगळ्या आहेत ना, त्या सगळ्यांची एक पार्टी, म्हणजे ज्या मागासवर्गीयांच्या पार्टीज आहेत ती एक पार्टी झाली तर असं म्हणतो. मला असं वाटतं की त्याला असं म्हणायचं आहे की आपली आयडिओलॉजी एकच आहे, पण आपण इतक्या पक्षांमध्ये विखुरलं गेलो आहे की आपली ताकदच एक नाही आहे. सो सगळ्या पक्षांनी, मग ते कुणी असो, RP असो दे, पॅन्थर असो दे किंवा इतर कुठल्याही पक्षांनी, जर आपण बाबासाहेबांचा आदर्श तत्व घेऊन पुढे चाललं आहे तर आपल्यावरती एक वाक्य का असायला. म्हणजे आज मला इथे पद मिळतंय म्हणून माझा पक्ष त्या पक्षात तत्व आहे, हे कुठेतरी थांबायला. I think that's more. I think we should stick to the presentation, and question should be related to the presentation. Okay. Yeah. Yes. Anudya has one question. Hello. She has one question. No, I just want to not react to anything, but I'm just so happy to be in this session today. That's what I want. I'm happy to listen to young social workers in training speaking so well. And I'm also led by our moderator who is doing a very good job. I don't know your name, sorry. Rahul. Thank you, Rahul. You're doing a good job. And I would say that each of them did a really lovely, each one of you have done a nice summary of the book, and I like also the ending. You gave some good shairis and quotations. But what I like is that also that some of you have, most of you have raised some good questions. And what is that precisely that such. I was happy after a long time to see College of Social Work buzzing with real social issues being discussed. I'm happy to see that. Yeah, guys, I mean, I'm so happy to see
your responses also, audience is also good. See, when you all come this way and participate, I say yes, this is College of Social Work. Because this is where I studied, this is where I spoke, this is where I came up from. And you all guys have to speak. Students, you have to speak and debate. I agree with you, I disagree with you, I would have a point of view, please say it. And I think that is what should happen more and more in this college. Let this be a beginning of this kind of thinking. College, university is a time for free thinking. Let your thoughts come out, okay, and be expressive. Thank you. Last question. Hi. So this is my question for Zainab and Jyoti. What motivated you to read those books and get into the topic? Thank you. So this book, I am Malala. I saw this book in the library and I just liked the cover of the ticket. So I was curious. When I was in 9th grade, I read that book once. And then when I went in the Equal Opportunity Cell, so I am also a part of it. So when I got to know about it, so I said, I told to Sameer that, when I am going to present a book. So the story of Malala, basically this encouraged, the reason behind I took the book was, she was just a 15-year-old, like the way, there was a story in the book that why Malala doesn't wear earrings, okay? So that, वो मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसे वो बन गया कि यार क्यों, मतलब उस टाइम में तो लड़कियों को सजना संवरने का बड़ा शौक होता है. She was just 15-year-old, तो उसमें लिखा था कि वो जब छोटी थी तो उसकी एक नेबर थी, ठीक है? तो उसने उसके एक खिलौना था बचपन का फोन, वो चुरा लिया था. तो उसने उसके रिवेंज में उसके नेबर से चीज़ें चुराना शुरू की, जैसे क्लेटरी चीज़ें, इयररिंग्स, नेकलेसेस. लेकिन वो एक दिन पकड़ी गई. तो उस दिन उसने डिसाइड कर लिया कि जो चमक है ये सिर्फ दुनिया में ही रह जाने वाली है. उस दिन से वो इयररिंग्स और ऐसे जो भी ज्वेलरी होती है उसने पहनना छोड़ दिया. तो मेरे हिसाब से एक टीनेज गर्ल जिसने सिर्फ अभी दुनिया देखनी शुरू की है, वो एक पॉलिटिशियन की तरह बात करती है, वो इंटरव्यूज देती है, वो तालिबान जैसे बड़े लोगों से लड़ती है, ऐसा मैंने किसी से सुना था. और हमारे स्कूल में भी एक प्ले हुआ था मलाला के ऊपर. तो उस टाइम से थोड़ा ऐसे क्यूरियोसिटी बढ़ गई पढ़ने की कि क्या है इस बुक में, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो मतलब मुझे इसमें से ये मोटिवेट करता है कि मतलब मुझे नहीं हर किसी को कि
क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अगर आंसर देना चाहूँगा जो लिख के दिए हैं। हम सब सामाजिक कार्यकर्ता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता का काम छोटा या बड़ा ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि महात्मा फुले जी ने जब उनका काम शुरू किया था तो किसी को ये नहीं एहसास हुआ, तो उनको खुद को भी एहसास नहीं हुआ कि आगे जाके भारत में ये सब परिवर्तन होगा। सामाजिक काम ही ऐसा रहता है, उसका क्रांति रिवोल्यूशन कोई मैगी नहीं है जो 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। महात्मा फुले ने जो रिवोल्यूशन रखी, बाबा साहेब ने उसे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेम में लाके बिठा दिया। ये सामाजिक काम ही ऐसा रहता है, हमें उसका अंदाजा नहीं है कि दूर तक जाएगा। हम सब सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे तो हमारा काम कितने दूर तक जाएगा ये हमें अंदाजा नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी को याद रखना चाहिए। और पुस्तक जो है, बुक के बारे में जो बताना चाहूँगा कि इस देश में डेमोक्रेसी कैसे लागी गई है। अगर पूरे सामाजिक परिवर्तन नहीं लाते तो डेमोक्रेसी का थोड़ा होती डेमोक्रेसी, लेकिन थोड़ा समय लगता था, क्योंकि काम फुले जी ने शुरू किया और बाबा साहब तक आते आते खत्म हो गया। क्यों हुआ? जब बाबा साहब पढ़ने गए और उधर कोलंबिया में, इंग्लैंड में जब पढ़ने गए तो उधर के जो थिंकर थे, जेफरसन रहेंगे, रशियन रेवोल्यूशन रहेंगी, या फिर मार्टिन लूथर किंग रहेंगे, इनके बारे में जब पढ़ा और बाबा साहब को वो जीने की आदत हो गई। तो जीने की आदत मतलब समानता, बंधुता और न्याय में जीने की आदत हो गई। इसलिए बाबा साहब ने अपने परिवार को छोड़कर यहाँ के वंचित, यहाँ के हर एक चीज के बारे में थिंकिंग स्टार्ट किया और अपनी पढ़ाई शुरू की और आके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। अगर हमें सही दिशा में जाना है तो सबसे सुपीरियर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए, क्योंकि वही हमें न्याय के रास्ते तक ले जा सकता है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मराठी में बताऊंगा, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकता, अगर ये हाथ है, अगर मूर्ति बनेगा तो हम सब एक होंगे, अगर नहीं बनोगे तो कुछ इसका मतलब नहीं है। ये बताना चाहूँगा और सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ के ही हम कुछ बन सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ये सबसे बड़ी की है यहाँ की व्यवस्था चेंज करने की। और हमारे जो पैनलिस्ट है उनका मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और आपके बगैर ये मतलब जो कॉन्फ्रेंस का कोई ये नहीं होता, तो आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। और इको अपॉर्चुनिटी से को थैंक यू कहना चाहता हूँ। और कॉलेज आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं शुरुआत में मेरे को ऐसा लग रहा है ये सब मतलब मुझे जो अपेक्षित है मेरे मन में वो सब मुझे निर्मल निकेतन ऑफ कॉलेज ऑफ सोशल वर्क दे सकता है क्या। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है, आज भी और आते समय मेरा एडमिशन होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है ये निर्मला निकेतन कॉलेज हमें एक अलग, हम सबको, मुझे ही नहीं हम सबको एक अलग पहचान जरूर देगा, या भी मुझे विश्वास हो गया है। और सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। ऐसे थैंक यू और आगे वोट ऑफ थैंक्स तेजस्वी शशांक, वोट ऑफ थैंक्स शशांक। Thank you, Mr. Rahul Pandalai, for chairing today's session, and thank you to all panelists. And I would like to invite Mr. Samir sir for today's session. Please. They are not in a state of mind to listen anymore. I would like to thank Dr. Nidhi Das, our basically. Yes, and I would like to invite Ms. Sabina. Some words of appreciation which are most deserved. I really appreciate Dr. Samir and the Equal Opportunity Cell for bringing this newness in the college. Gildi sir has somewhere made my work lighter by saying what I have to say.
So students, I'm really happy that it has given a very good platform, especially to see the BS ones, the budding social workers. I'm really very proud. In fact, it is said that before the program starts, if the positive vibes are given, everything goes on well. So when Samir sir had shared with me that he is going to conduct this vocal conference, I was already imagining that it will be really wonderful. And you students have really proved that whatever I had thought and imagined has come to a reality. So congratulations to Rupesh, Tejas, Zainab and Jyoti and your moderator Rahul. It was an excellent job. You have brought out a lot of thinking and the thoughts of the writers in those days, but how it is also applicable in times of today and how you can contribute in making this world a better place. And my dear audience, the title is very apt, the vocal conference. I think it has been both the ways. The audience also were very vocal, there were differences of opinion, but that is what is also important for a discussion and also to know how we are to react or act in a situation. So hearty congratulations to each and everyone. They really deserve a big round of applause. Keep going and keep growing. I'm sure the others also are motivated from you. Keep it up. I would like to thank Dr. Levin Dias for, most of the time she keeps, encouraging us to have something new actually. And even I would like to thank Ms. Samina Munsanis, her words are really motivating all the time, she keeps encouraging us every minute. And the chairperson of Equal Opportunity Cell, Dr. Vijayanta, she's always, being a pillar of this Equal Opportunity Cell. She's always there, whatever we need, she's like, okay, go ahead. And I would like to thank each and everyone, especially, Rahul and Tejas, and we're having Tejasvi and Snehal, those who are the conveners of Equal Opportunity Cell, representing student committee, and they have, decided to have something kind of, this presentation of books. They have finalized the book, they have given, and they have conceptualized everything. So I really would like to thank you. And today's panelists, Rupesh, Zainab, and Jyoti. First year, you can't believe that it was really happy. And there are many students actually, members of Equal Opportunity Cell. They had been, working, throughout the day. I don't want to take name because if I miss one name, then they might, feel bad. But all the team, and they are sitting here. I really salute you guys. You have really done a wonderful job. All the participants actually, I am really happy. Tejas sir is not there actually. Debate is the outcome of such conference, and everyone was vocal. I am so happy, and officially vote of thanks by Shashank Mohan. Respected member of the desk, all the speakers, I thank you for the insightful summary of this following book. आधुनिक भारतातील दलित उपरा शिवाजी कोण होता, I am Malala. Even I would like to thank all the members of Equal Opportunity Cell who worked hard to make this conference successful. I thank our principal of College of Social Work, Nirmal Niketan, Dr. Levin Dias, for continuous support and being a pillar. I thank anchor of this conference, Tejasvi Gamre. I thank Ismail Gori Khan to giving us information about scholarship. I thank food committee for refreshment. I thank non-teaching staff to making arrangement of conference. A special thanks to Assistant Professor Samir Mohite for motivating us for organize this conference.
but not the least, I would like to thank faculty members of our for their presence, support and encouragement. Thank you.